السلام علیکم۔ بکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ شدت عاشقی قسط نمبر 16 زویا شاہ۔ سیرت بنت عاطف احمد رضوی کہ آپ کو حدید رضا عسکری ولد جہانگیر احمد کے ساتھ حق مہر 1 کروڑ روپے سکہ راج الوقت یہ نکاح قبول ہے۔ ایک آنسو اس کی پلکوں کی حد توڑ کر اس کے ہاتھ کی پشت پر آ گرا۔ یہ اشک اس کے اب تک کے کیے گئے صبر کی توہین تھا۔ لہنگے کو مٹھی میں بھینچے اس نے درد سے پھٹتے دل کو تسلی دینی چاہی تھی۔ اگر وہ پہلی چیز واقعی اتنی زیادہ خاص ہے کہ آپ اس کے لیے اپنی دوسری خاص چیز قربان کرنے کی ہمت رکھتی ہیں تو بے شک آپ کو وہ چیز حاصل کر لینی چاہیے پرنسس۔ اس نے سر دھا بھری تھی۔ قبول ہے۔ کچھ دیر بعد خوبصورت باریک آواز سنائی دی تھی۔ اس کے جواب کا منتظر سنجیدگی سے اس پر نظریں مرکوز کی اس کے قبول ہے کہتے ہی مطمئن سا ہوا۔ گھنی پلکوں پر آنسو خشک ہو چکے تھے۔ آنکھوں سے ان آنسوؤں کے مراسم بہت پرانے تھے۔ یہ بات وہ اور اس کی تنہائیاں جانتی تھیں۔ قبول ہے۔ نظریں ایک غیر مرئی نقطے کو نہ جانے کب سے تک رہی تھیں۔ ہوش میں ہونے کے بعد بھی وہ ہوش میں نہیں تھی۔ کسی پر بھروسہ نہ کرنے کا عہد کرنے والی لڑکی مجبوراً آج کسی اجنبی کے ساتھ خود کو جوڑ بیٹھی تھی۔ قبول ہے۔ اس کی غیر متحرک سے سیاہ بے نور آنکھیں ایک نقطے پر جامد تھیں۔ لب قبول ہے کہہ رہے تھے، دل شکوہ کر رہا تھا، سر میں درد کی علامت نہ ہی ٹھیک سے اٹھ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دیجیے گا بھائی، آپ کی سیرت آپ کا بھروسہ توڑ رہی ہے، لیکن آپ کی بہن جو بہت اسٹرانگ بنی پھرتی ہے بہت ڈرپوک ہے بھائی، دنیا کی نظروں سے چھپتی پھر رہی ہے، اپنے داغدار دامن کو چھپاتی پھر رہی ہے۔ آپ کو ہر بات بتا سکتی ہے مگر یہ نہیں بتا پائی، نہ کبھی بتا پائے گی۔ نظریں نہیں ملا سکتی آپ کے ساتھ، کسی کے ساتھ نہیں، اور آج کے بعد تو کبھی نظریں نہیں ملا پاؤں گی۔ آپ کے بھروسے کو، اعتماد کو توڑ رہی ہوں بھائی، لیکن اسے اس 14 سالہ لڑکی نے خود سے یہ عہد کیا تھا کہ اپنے گناہ گار کو ایسی دردناک سزا دلائے گی جو کبھی کسی نے کسی کو نہیں دی ہوگی، کیونکہ اس دنیا کی عدالت کے کسی قانون کو کوئی بھی سزا اس گھٹیا شخص کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ آنکھیں کھولے اس نے نکاح نامے کو حسن نگاہوں سے دیکھ کر پین تھاما تھا۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے اس کے گرم آنسو آنکھوں میں رچ کر سرخی مائل آنکھوں پر نمک پاشی کر گئے، مگر سائن کر چکی تھی وہ۔ کیا تم نے معافی مانگی سیرت سے، اور کس لیے مانگی؟ سونیا نے تعجب سے اس کی جانب دیکھ کر تصدیق چاہی تھی۔ خشم سے سر کو خم دیکھ کر عرش نے ڈرنک کا دوسرا شاٹ ختم کیا۔ کچھ پوچھ رہی ہوں تم سے، کیوں معافی مانگی تم نے؟ سونیا نے ناگواری سے اسے نشے میں جھومتے دیکھ کر تنگ کر رکھا تھا۔ ارے ریپ کیا تھا اس کا میں نے۔ عرش آتش فشاں کی طرف پھٹ پڑا تھا۔ سونیا کا چہرہ فک ہوا تھا۔ عرش نے خجالت سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر صوفے کی پشت سے سر ٹکایا۔ اب کیا کرو گے تم؟ سونیا نے اس کو گھورتے ہوئے متفکر لہجے میں استفسار کیا۔ آج میں نے عسکری کی وجہ سے معافی مانگی۔ وہ مجھے ایسی وحشت سے دیکھ رہا تھا جیسے اس کا دشمن ہو۔ اس چالاک لونگڑی نے عسکری جیسے مکار شخص کو اپنے قابو میں کر لیا۔ عرش نے ہاتھ کو اٹھا کر اپنی اکتاہٹ کا مظاہرہ کیا تھا۔ سونیا نے اسے ڈرنک کا تیسرا شاٹ اٹھاتے دیکھ کر تعصب سے پیشانی کو مسلا۔ مجھے لگتا ہے وہ عسکری کے ساتھ سو رہی ہے آج کل، اس لیے عسکری سے اس کی انسلٹ برداشت نہیں ہوئی، شاہ زیب نے تشویش سے کہا، جس پر عرش نے کہکہا لگایا۔ فون پر چلتی سونیا کی انگلی ساکت ہوئی، آنکھوں میں ناگواری ابھری۔ یکدم فون سے نظریں اٹھا کر اس نے عرش کی جانب دیکھا جو نشے میں چور جو منہ میں آ رہا تھا بڑبڑا کر ہنس رہا تھا۔ سونیا کے گھورنے پر شاہ زیب کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسا تھا۔ بے وقوف، اگر سچ میں اس کا عسکری کے ساتھ افیئر ہوا تو؟ سونیا نے فون پرس میں رکھ کر عرش کو دیکھ کر سرد لہجے میں کہا تھا۔ ہاتھ کو بے پرواہی سے ہلاتے ہوئے وہ ہنسا تھا۔ سونیا نے پیشانی پر بل ڈالے اسے دیکھا۔ یقیناً شاہ زیب کی بات سے وہ جلد بھن گئی تھی۔ چھوڑو یہ بھی، وہ کسی کی بھی محبت کے قابل نہیں رہی۔ ایسڈ گرایا تھا میں نے اس پر، بس اس کی شکل اچھی ہے، کون محبت کرے گا اس سے؟ عرش نے گلاس ٹیبل پر رکھ کر دھیمے لہجے میں کہا۔ سونیا نے حیرت سے لب وا کیے تھے، مگر کچھ کہنے کے قابل نہیں تھی، نہ ہی اسے الفاظ مل پائے تھے۔ شاہ زیب نے قدرے سنجیدگی سے عرش کو دیکھا۔ تمہاری اچانک سے سیرت میں اس عدم دلچسپی کی وجہ دریافت کر سکتا ہوں؟ عرش نے تنزیہ نظروں سے شاہ زیب کو دیکھا، جس پر وہ تن سے سر کو خم دیتا ہوا وڈکا کی بوتل اٹھا کر اپنے لیے مشروب ڈھونڈنے لگا۔ کمرے کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سن کر کھڑکی سے آسمان پر چھائی سیاہ گھٹاؤں میں چمکتی آسمانی بجلی کو دیکھتی وہ پیچھے مڑی تھی۔ پریک کوٹ کاؤچ پر اچھال کر وہ فون پر کچھ ٹائپ کرتے ہوئے کبرڈ کی جانب بڑھا تھا، مگر سیرت کے فون کی رنگ ٹون کے بجنے پر وہ رکا۔ سیرت نے فون اٹھایا تھا۔ اس کی بھوری آنکھوں نے اسے گھبراہٹ کے ساتھ فون سوئچ آف کرتے ہوئے دیکھا۔ کیا ہوا؟ کون تھا؟
اس نے فون سے نظریں ہٹا کر اس کی جانب دیکھا. اس کے یوں غور سے دیکھنے پر وہ خجل سی ہوئی تھی. یقیناً بھوری آنکھوں کا اس پر سے نظریں ہٹانا مشکل ہو رہا تھا. ہمیشہ سادہ رنگوں میں دیکھا تھا اس نے اس لڑکی کو جو آج تمام تر اور اسی حسن کے ساتھ ایک عجیب کشش لیے ہوئے تھا. مجھے چینج کرنا ہے، اسے تیکھی نظروں سے دیکھ کر کہا گیا. بھویں اٹھائے وہ کسی گہرے سرخ رنگ لہنگے کو دیکھ کر مبہم سا مسکرایا. سیرت نے مٹھی بھینچی تھی اسے اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر. اگر تم نے مجھے ہاتھ بھی لگایا نا. سیرت نے عصبانیت سے آنکھیں پھیلا کر اسے انگلی دکھاتے ہوئے وارننگ دی اور کچھ قدم پیچھے لیے. وہ متبسم نظروں سے اسے دیکھتا اس کی سمت بڑھ رہا تھا. افسوس کہ تم میری ساری خواہشات کو چند کاغذوں سے دبا دیا سیرت عسکری. لکڑی کے فرول پر اڑتے اس کے قدموں کی آہٹ اس کی دھڑکنیں منتشر کرنے کے لیے کافی تھی، مگر رہی صحیح کسر اس کی بھاری گھمبیر آواز نے پوری کر دی. دیوار سے پشت ٹکاتی وہ حلق تر کرتی متذبذب نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جو 1 انچ کے فاصلے پر قریب دیوار پر ہاتھ رکھے ہوئے سنجیدگی سے گویا ہوا. Wishes? What do you mean? This nikah was just a contract. You said it yourself. خواہشات؟ کیا مطلب؟ یہ نکاح تو بس ایک معاہدہ تھا، تم نے خود کہا تھا. اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھ کر وہ آہستگی سے بولی تھی. اس کی ڈوبتی آواز پر بے ساختہ ایک دلفریب مسکراہٹ نے اس کا لبوں کا احاطہ کیا. You really want to know about these desires, but I am afraid my words may embarrass and frighten you at the same time, honey. تم واقعی ان خواہشات کے بارے میں جاننا چاہتی ہو، لیکن مجھے ڈر ہے کہ میرے الفاظ تمہیں ایک ہی وقت میں شرمندہ اور خوف زدہ نہ کر دیں، ہنی. سیرت نے اس کے وجہ چہرے کی نزدیکی پر گھبرا کر آنکھیں جھپکی تھیں. ہلکی روشنی میں اس کی خوبصورت چہرے پر لہراتے گھنی پلکوں کے لرزیدہ سائے اس نے وارفتگی سے دیکھے. اس کے کلون کی وہ سحر انگیز مہک سیرت کی سانسوں سے اس کی روح تک آسانی سے رسائی حاصل کر گئی. I wanted to touch you gently, to feel you, to infuse your soul with my presence. I wanted to pour my poison on your soul. I wanted to keep touching you until you were addicted to my love. How attractive you are in these pink lips. I wanted to quench my thirst with their paradise. میں تمہیں نرمی سے چھونا چاہتا ہوں، تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں، تمہاری روح کو اپنی موجودگی سے متاثر کرنا چاہتا تھا سیرت عسکری. میں تمہاری روح پر اپنا جذبہ انڈیلنا چاہتا تھا. میں تمہیں اس وقت تک چھونا چاہتا تھا جب تک تم میری محبت کی عادی نہ ہو جاؤ. تم کتنی دلکش ہو ان گلابی ہونٹوں میں. سیرت کی تیز دھڑکن، بے ترتیب سانسیں اس کے بے باک لفظوں پر سرخ اناری پڑتے رخسار اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اس کے سحر انگیز الفاظ نے اسے اپنے سحر میں مبتلا کیا تھا. اس کی پرتشپش سانسوں نے اس کی سردی کے باعث برف جتنے ٹھنڈے رخسار کو جھلسا دیا تھا. بس کرو عسکری. آنکھیں سختی سے میچ کر اس نے بے حد دھیمی سرگوشی کی تھی. The intensity of my word is beyond your endurance, Seerat. I have not even been here for 10 minutes and you are drowning in my presence. You will go crazy if I spend even one night of 12 hours in my proximity. میری باتوں کی شدت تمہاری برداشت سے باہر ہے سیرت. مجھے یہاں آئے 10 منٹ بھی نہیں اور تم میری موجودگی میں ڈوب رہی ہو. 12 گھنٹے پر مشتمل ایک رات بھی میری گھر میں گزارو گی تو پاگل ہو جاؤ گی. سیرت کے تھر تھراتے گلابی لبوں کو شدت بھری نظروں سے دیکھ کر وہ خمار آلود لہجے میں گویا ہوا. اس قدر دھیمے لہجے میں کہا گیا جیسے بہت بڑا راز تھا ان دونوں کے بیچ جو صرف سیرت کو سنانا چاہتا تھا. تم پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتی میں. اس کی بھوری درخشاں آنکھوں میں دیکھ کر سیرت نے بے خوفی سے کہا تھا. اس کی بہادری کو اس نے نظروں سے سہارا تھا. کتنی نادان ہو تم جانم. تم اس وقت میرے پاس میرے روم میں موجود ہو. سوچو میں کیا کچھ کر سکتا ہوں اگر میں نہیں کرنے کی نیت رکھتا. دیوار پر ٹکائے ہاتھ کو اس کے قریب رکھتے ہوئے تصدیق آمیز لہجے میں گویا ہوا. خوف زدہ ہونے کی بجائے وہ مسکرائی تھی. اور تم مجھے نادان سمجھ کر بہت بڑی نادانی کر رہے ہو. میں خود پر اٹھنے والے ہاتھ کو توڑنے کی صلاحیت رکھتی ہوں. اس سے اگر کبھی ایسی خوش فہمی پالنے کی جانب دھیان بھی جائے تمہارا تو یہ یاد رکھنا کہ یہ خوش فہمی میرے متعلق نہ ہو حدید رضا عسکری. اس کے ہاتھ کو پر اشتعال آنکھوں سے دیکھ کر وہ اس کے قریب تر چہرے کے مزید قریب ہوئی. ترشت لہجے میں بولی. اس نے متبسم نظروں سے اسے دیکھا تھا. نظروں میں ڈھیروں ستائش تھی. جانتا ہوں لیکن تم نہیں جانتی. سیرت نے معتجب نظروں سے اسے دیکھا. دونوں ہاتھ دیوار پر ٹکائے وہ التہابی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا. سیرت نے حلق تر کیا. کیسے کچھ ہی سیکنڈز میں اس کے چہرے کے تمام تر تاثرات وحشتناک حد تک تبدیل ہو چکے تھے. اس بات کو اپنی میموری میں سٹور کر دو کہ تمہاری اجازت کے بغیر میں تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا. اور
ज़बरदस्ती जैसे चीप लफ्ज़ मेरी डिक्शनरी से बाहर है। चेंज कर लो। ड्रॉप कर देता हूँ, रात काफ़ी हो चुकी है, तुम्हारी बीजन परेशान हो रही होंगी। इसकी आंखों में आंखें डालकर वो उसे कहकर दरवाज़ा खोलकर कमरे से वॉकआउट कर गया था। सीरत ने लंबा सांस हवा के स्पूर्द कर दिया। ज़कीक चाक चलती चाहत लेफ्ट हैंड में इस्तगानियत से फ़ोन यूज़ करते हुए किचन की जाने बढ़ रही थी। आज लेडी टूटने की वजह से उसे नाश्ते में भी काफ़ी देर हो चुकी थी। सब नाश्ता कर चुके थे जब उसे लाउंज से आवाज़ें सुनाई दी। फ़ोन को पेंट की पॉकेट में रहे से वो तजस्सुस भरी नज़रों से लाउंज की जानिब देख कर आवाज़ की सिमत चल दी। आओ बैठो बेटा। मेहरुनिसा बेगम ने उसे लाउंज में दाखिल होते देखकर मुस्कुराकर अपने साथ बैठने की पेशकश की, मगर उसकी नज़रें तो मम्यानों पर ही मरकूज़ होकर रह गई थी। बगैर सलाम करने की तकल्लुफ़ उठाए वो आफतज़दा नज़रों से कलसूम बेगम, जो अशफाक साहब के पुराने फ्रेंड्स शाहनवाज साहब की वाइफ थी, और इनके छोटे बेटे शम्स को देखने लगी। कैसी हो तुम बेटी? कलसूम बेगम ने मोहब्बतबाश नज़रों से उसके तीखे नकोश चेहरे को देखकर कहा। हाँ, प्यारी तो वो थी, लेकिन ओवर मेकअप की आदत और कड़वे मिजाज ने इसकी शख्सियत को निखारने की बजाय मज़ीद बुझा दिया था। जी मैं ठीक हूँ। आंटी आप कैसी हैं? उकताहट छुपाती वो सर को धीरे से हिलाकर जवाब दे चुकी थी। कलसूम बेगम ने मुस्कुराकर उसे देखा था, मगर इसने शम्स को ऐसे नज़रअंदाज किया जैसे वो यहाँ मौजूद ही नहीं। मेहरुनिसा बेगम ने चाहत को नज़रों से बैठने का इशारा किया था। उंगलियां चटकाते हुए मखदूश नज़रों से शम्स को देखने लगी, जो अपनी वालदा की जानिब देखता तासुब से सर झटक गया। सावियान और इसकी दुल्हन नज़र नहीं आ रहे, कहीं गए हैं क्या वो? कलसूम बेगम ने मुस्कुराते इस्तफसार किया। चाहत ने लम्स का जिक्र आते उकताहट से आंखें घुमाई थी। हाँ कलसूम, लम्स यूनिवर्सिटी गया और सावियान ऑफिस गया है। तुम चाय लो ना, ठंडी हो रही है। शम्स बेटा आप भी लो। मेहरुनिसा बेगम ने चाय और स्नैक्स की ट्रे की जानिब इशारा करते हुए मुस्कुराकर कहा। शम्स को और कलसूम बेगम ने कुछ सेकंड्स बाद तहजीब से कप उठाए थे। मेहर, मैं तुम्हारे पास बहुत पुरुम्मीद होकर आई हूँ। मुझे उम्मीद है तुम मुझे मायूस नहीं करोगी। मुझे अपने शम्स के लिए चाहत का रिश्ता चाहिए। मेरा बेटा चाहत को पसंद करता है और इसी आस से तुम्हारे पास आई हूँ। कलसूम बेगम ने चाहत को देखकर, मोहब्बत भरी नज़रों से देखकर मेहरुनिसा बेगम के हाथ पर हाथ रखते हुए शाइस्तगी से कहा था। मेहरुनिसा बेगम का चेहरा खिल उठा था। वो तो पहले ही चाहत की शादी को लेकर परेशान थी। जिन हालात में सावियान और इसकी शादी टूटी थी, इसके बाद शम्स जैसे अच्छे लड़के का रिश्ता आना किसी नेमत से कम थोड़ी था। मगर फिल वक्त चाहत की जानिब देखने पर सारी मसरत चेहरे से मादूम हुई थी। दोनों मुठ्ठियाँ भेजकर वह सुर्ख शोला चेहरे से शम्स को देखती हुई सोफे से उठी थी। कलसूम बेगम ने चढ़ती निगाहों से उसकी तरफ देखा था। निकलो हमारे घर से अभी इसी वक्त, राहदरी के दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए वो चीखी थी। मेहरुनिसा बेगम ने हैरत से उसे देखा और सोफे से उठते हुए उसकी जानिब कदम बढ़ाकर उसे रोकना चाहा, मगर वो टेबल की दूसरी जानिब से गुजरकर शम्स की तरफ पेशरफ्त कर गई। अपनी माँ को लेकर अभी इसी वक्त निकलो मेरे घर से। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? जानते हो सावियान की मंगेतर हूँ मैं, मोहब्बत करती हूँ मैं सावियान से। सोच कैसे लिया तुमने मैं तुमसे शादी करूँगी? मेहरुनिसा बेगम ने सदमे से इसका सुर्ख चेहरा देखा। पेशानी पर बल डाले चिंगारियाँ उड़ाती आंखों से शम्स को देखती वो हलक के बल चीख पड़ी थी। कलसूम बेगम ने शम्स को मुट्ठी भींचते देखकर इसके कंधे पर हाथ रखकर इसे कोई रद्द-ए-अमल देने से कब्ल रोका था। चाहत, ये क्या तरीका है? मेहरुनिसा बेगम ने इसे आपे से बाहर होते देखकर इसकी जानिब कदम बढ़ाकर गैज़ो गज़ब कैफियत में उसे समझाना चाहा, मगर वह कांपते हुए हाथ से इन्हें रुक जाने का इशारा करती खूनख्वार नज़रों से कलसूम बेगम की जानिब पलटी थी। खश्म व अस्पानियत से भरपूर इसका वजूद कांप रहा था। आंखों में तैश के आलम में आंसू जमा हो गए थे। निकलो मेरे घर से। दरवाजे की तरफ इशारा करती वो दांत पीस कर बोली थी। शम्स ने उसे इल्तहाबी सुर्ख निगाहों से देखकर कलसूम बेगम की जानिब देखा। बगैर एक लफ्ज़ वही कहे वो इनका हाथ थामकर लाउंज से बाहर निकला था। मेहरुनिसा बेगम ने शर्मिंदगी से उसे देखा था। लंबे सांस लेती हुई वो कांपते हुए हाथ को पेशानी पर रखकर पसीना साफ करते अपने कमरे की जानिब तेज़ रफ्तार कदमों से बढ़ी। आज मेहरुनिसा बेगम वाकई इसकी दिमागी तवाज़ुन ठीक ना होने वाली बात से मुत्तफ़िक हो चुकी थी। इसने जो कुछ किया था इसके बाद इसे नॉर्मल कहना बहुत बड़ी गलती हो सकती थी। रिश्तेदारों का लिहाज करके कलसूम बेगम और शम्स ने उसे कुछ नहीं कहा था, लेकिन मेहरुनिसा बेगम को चाहत के इस रद्द-ए-अमल से आज ढेरों शर्मिंदगी हुई थी। ब्लैक कलर के बटरफ्लाई स्लीव्स ब्लेज़र के नीचे ब्लैक ट्राउज़र के साथ मैचिंग ब्लैक टी स्ट्रिप शूज़ पहने, लंबे ब्राउन बालों को क्लासी पोनी टेल में कैद किए बैंक कंधे पर डाले, वो तेज़ कदमों के साथ लेक्चर हॉल की जानिब बढ़ रही थी।
गले में पश्मीना ब्लैक स्कार्फ ब्लैक चोकर नेकलेस के साथ बेहद खूबसूरत लग रहा था। दोनों कानों में वाइट नफीस डायमंड इयररिंग्स सूरज की किरणों से पुरकशिश अंदाज में चमक रहे थे। हाय अल्लाह महविश, ज़रा इसे तो देखो। लेक्चर हॉल में कदम रखती अपनी पुरुष से आती रुबाब की नागवार आवाज़ सुनकर उसके पेशानी पर बल पड़े थे। लंबा सांस लेकर तहम्मुल से वो पीछे मुड़ी थी। सर से पांव तक इसका हासिल नज़रों से जायज़ा लेती रुबाब नाक सुकड़े उसे ही देख रही थी। फरमाइए मिस GPS साहिबा। सीने पर बाजू फैलाकर लपेटने के बाद वो तंजिया लबो लहजे में इसके डार्क मेकअप वाले मसनूई चेहरे को देखती लबों के किनारों पर मुस्कुराकर बोली थी। उसे मुस्कुराते देखकर रुबाब के तन बदन में आग लगी थी। महविश ने इसके बदले तेवर देखकर भवें उठाई थी। तुम तो खुद को न जाने क्या ही चीज़ समझने लगी हो। रुबाब ने इसकी बनफशी आंखों में आंखें डालकर तमस्खर भरे लहजे में कहा था, मगर बुरा मनाने की बजाय वो मुतबस्सम नज़रों से उसे देखते शाने उचका गई थी। क्या हासिल हुआ प्रोफेसर सावियान के आगे पीछे घूमकर? शादी तो तुम्हारी कहीं और ही हो गई। रुबाब तासुब से सर को खम देकर महविश के साथ देखती हंसी। आइजल की मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। इसका मजाक उड़ाते हुए बेचारी कितनी मासूम लग रही थी। बस हो गया तुम्हारा? रुबाब ने तुनक कर इसे देखा, जो तमस्कर उड़ाती निगाहों से उसे देखती निचला होंठ दबाते हुए लेक्चर हॉल में एंटर हो गई थी। महविश ने इस्तेफामिया नज़रों से रुबाब को देखा था। दोनों साथ चलती हुई अपनी सीटों पर बैठी थी। अपनी सीट पर बैठकर इसने फ़ोन की चमकती स्क्रीन पर मैसेज का नोटिफिकेशन देखा था। क्या आप यूनिवर्सिटी पहुंच गई? उसे ऑफिस में कोई ज़रूरी काम था जिसकी वजह से उसने आज यूनिवर्सिटी लेट आना था, इसलिए वो आज यूनिवर्सिटी ड्राइवर के साथ आई थी। लिहाजा वो इसे दरियाफ्त कर रहा था। हल्की मुस्कान के साथ उसने जी लिखकर मैसेज सेंड किया था। हुरम को लेक्चर हॉल में एंटर होते देखकर वो फ़ोन रखती उठकर लबों पर उसे खुशदिली से गला लगा गई। बैठो बैठो, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। हुरम ने चहकते हुए इसके दोनों हाथों का थाम कर इसे बिठाया। लेक्चर हॉल में सन्नाटा छा गया। आइजल ने दिलचस्पी से उसे लेक्चर हॉल में एंटर होते देखा था। सब ने मुतजब नज़रों से उसे ऑफिस की ड्रेसिंग में देखा था। फॉर्मल ब्राउन 3 पिन सूट में मलबूस व वजाहत का शाहकार एक संजीदा नज़र रोज़ में बैठे स्टूडेंट्स को देखकर स्टेज की जानिब बढ़ गया था। आइजल ने हुरम को चुप करवा कर बुक हाथ पर रखते हुए नज़रों का मरकज़ इस वजीह शख्स को बनाया। The results of the last day's test paper. I have to say the great regret that my only few students have got A+ grade. The rest have average marks. I don't expect this from my class. गुज़श्ता रोज़ के इम्तिहानी पर्चे का नतीजा मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सिर्फ चंद तलबा ने A+ ग्रेड हासिल किया। बाकी के औस नंबर हैं। मुझे अपनी क्लास से ये उम्मीद नहीं है। कुछ देर पहले जिस कदर पुरसकून तासरात लिए वो एंटर हुआ था, उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि इसका मूड यकदम इतना ख़राब पड़ जाएगा। पेशानी पर चंद लकीरें डाले वो करख्त नज़रों से लेक्चर हॉल में गर्दनें झुकाए बैठे स्टूडेंट्स को देख रहा था। सुनहरी आंखों से नज़रों का मिलाप होते आइजल ने लब भेज कर सर झटका था। From now on, the weekly progress report of this class will be under my supervision instead of Professor Shahan, and I want 100% progress. Have you all understood what I said? अब से इस क्लास की हफ्तावार प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रोफेसर शाहान की बजाय मेरी निगरानी में होगी और मैं 100% प्रोग्रेस चाहता हूँ। क्या आप सब मेरी बात समझ गए हैं? संजीदगी से सबको निगाह गैर से देखकर उसने करख लहजे में इस्तफसार किया। सब स्टूडेंट्स घबराहट और शर्मिंदगी के मिले जुले तासुरात के साथ इसकी बात से मुत्तफिक हुए थे। आई विल चेक ऑल योर असाइनमेंट्स नोटबुक्स आफ्टर द लेक्चर एंड सो ऑल्सो कलेक्ट योर मार्कशीट्स फ्रॉम मी। मैं लेक्चर के बाद आपकी तमाम असाइनमेंट नोटबुक चेक करूंगा और अपनी मार्कशीट भी मुझसे ले लीजिएगा। पेपर स्टाइल्स पर रखकर उसने संजीदगी से कहकर ग्लासेस लगाते हुए लेक्चर का आगाज़ किया। उफ, प्रोफेसर का मूड बड़ा ख़राब लग रहा है। हुरम धीरे लहजे में आइजल के कान पर झुककर बड़बड़ाई। आइजल ने उसे तीखी नज़रों से देखकर खामोश रहने का इशारा किया था। इस पर हुरम लब भेज कर रह गई। असाइनमेंट के लिए क्लास के 5 स्टूडेंट्स पर मुश्तमिल ग्रुप्स बनाए गए थे। सब ग्रुप्स इसकी परमिशन से कंबाइन होकर सब टास्क रीचेक करने के बाद इसे चेक करवा रहे थे। खुदा के लिए मेरी बेइज्जती मत करवाना। सब ने असाइनमेंट पूरा किया है ना? हुरम आइजल के साथ अपने ग्रुप के पास आकर धीमे लहजे में बोली। सब ने मुतबस्सम नज़रों से उसे देखकर सर हिलाया, जिस पर वह सुख का सांस लेकर बैठ गई थी। ये किसकी स्केच बुक है? आइजल ने खुली हुई बुक उठाते अपने ग्रुप की जानिब इस्तफामिया नज़रों से देखकर पूछा था, जिसके सफ़ेद शफाफ पेज पर खूबसूरती से बनाया हुआ स्केच नज़र आ रहा था। बुरहान ने अपनी चोरी पकड़े जाने पर शर्मिंदगी से बालों में हाथ फेरकर सरदा भरी थी। ओ तो तुम स्केच भी बनाते हो? हमें तो पता ही नहीं था। आइजल खोलो ज़रा बुक, हमें भी तो पता चले कितना टैलेंटेड है हमारे ग्रुप में। हुरम ने निचला दबाकर उसे छेड़ा, जो लड़कियों के ब्लश करते हुए हुरम की जानिब देखकर वह सरदा भरते हुए सर झटक गया।
आइज़ल ने मुस्कुराते हुए स्केच बुक खोली थी जिस पर यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग्स के बहुत खूबसूरत स्केच बने हुए थे। सब अपनी असाइनमेंट बुक्स बारी बारी उसे चेक करवा रहे थे। बुक से नज़र उठाकर उसने आइज़ल को बुरहान के साथ मुस्कुराते देखा था, जो नोटबुक की तरफ इशारा करते हुए उसे एक लड़की के स्केच के मुतालिक कुछ पूछते हुए उसे खच्चर होने पर मुस्कुराई थी। पेशानी पर चंद बल पड़े थे। मजबूत उंगलियों में पकड़े प्लाटिनियम पेन पर दबाव बढ़ाकर उसने एक दुरुस्त नज़र बुरहान पर डाली, जो सर खुजाते हुए इसके साथ मुस्कुरा रहा था और उसे बिक की जानिब इशारा करते हुए कुछ बता रहा था जिसे वो दिलचस्पी से सुन रही थी। प्रोफेसर, रुबाब ने इसके करीब रुकते इसकी तवज्जो हासिल करनी चाहिए। आइज़ल से नज़रें हटाकर उसने सामने खड़ी रुबाब के हाथ से असाइनमेंट नोटबुक ली थी। आइज़ल की गुजरती नज़रें बेसाख्ता स्टेज पर मौजूद इस वजीर शख्स पर ठहरी थी। उसे बुरहान के साथ मुस्कुराते देखने के बाद इसका चेहरा इश्तियाल से बेहद सुर्खी माइल पड़ा हुआ था, मगर वो जब्त किए असाइनमेंट्स बुक्स चेक करके ख़ुद को मसरूफ़ रखने की कोशिश कर रहा था। थैंक यू प्रोफेसर। रुबाब ने हल्की मुस्कान के साथ रश्क भरी नज़रों से इसके मजबूत राना शमाइल सफ़ेद हाथों की पुश्त पर उभरी हुई नीली नसें देखी। संजीदगी से इसने अगली नोटबुक लेकर रुबाब की बुक इसकी जानिब बढ़ाई थी। उसे महरअमेज़ नज़रों से देखती हुए स्टेज से नीचे आई थी। और ये देखो, बुरहान जो काफ़ी तारीफ समेट कर बेहद खुशगवार मूड में आ चुका था, आइज़ल के हाथ पर पुरजोर से गैर इरादी तौर पर इसकी तवज्जो हासिल करने के लिए हाथ रख गया। हुर्रम से बात करती आइज़ल ने सर को फेर कर इसकी नोटबुक को मुस्कुराहट के साथ देखा था। बुरहान को पथरीली नज़रों से देखकर वो डाइस से हटा था। सबने मुतजब नज़रों से उसे स्टेज से उतरते देखा था। लबों पर हाथ रखकर हुर्रम के साथ मुस्कुराती आइज़ल की नज़रें अब इस पर पड़ी थी। मुस्कुराहट एक पल में गायब हुई थी। गेट अप। उसे दुरुस्त नज़रों से देखकर वो स्पाट लहजे में बोलकर इसे चौंका गया। आइज़ल ने घबराकर लेक्चर हॉल में मौजूद सब स्टूडेंट्स को खच्चर नज़रों से देखकर उसे देखा। सुर्खी माइल रंगत, लहू रंग आँखें, पेशानी और गर्दन की नीली नसें उभरी हुई थी। खौफज़दा नज़रों से उसे देखते हुए वो अपनी जगह से उठी थी। रुबाब और महविश ने एक दूसरे को ताज्जुब से देखा था। प्रोफेसर, नॉट अ सिंगल वर्ड मिस आइज़ल। इसकी बात करते हुए बुरहान की जानिब देखने लगा, जो नासमझी से और खौफज़दा नज़रों से उसे देखने से भी कतराता हुआ नज़रें झुकाए खड़ा था। आइज़ल ने हलक तर करते उसे मुतज़ब्ज़ब नज़रों से देखा, जो इसकी कलाई को आहनी गिरफ्त में लेकर बुरहान को पुरइश्तियाल आंखों से देखते हुए लेक्चर हॉल के दरवाजे की जानिब बढ़ गया था। लेक्चर हॉल में मौजूद सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स ने इन्हें मुतफक्किर नज़रों से देखा था, जो उसे अपने साथ लेकर ऑफिस की जानिब तेज़ कदमों से बढ़ रहा था। आइज़ल सहमी नज़रों से उसे देखती उसके साथ चल रही थी। वाई आर यू स्माइलिंग विद हिम? तुम इसके साथ क्यों मुस्कुरा रही थी? उसे ऑफिस में लेकर दाखिल होने के बाद धार से दरवाज़ा बंद करते इस कलाई को छोड़ते हुए इश्तियाल अंगेज़ लहजे में बोला। आइज़ल ने झुरझुरी लेकर उसे देखा था। यू स्कोल्डेड मी इन लेक्चर हॉल फॉर सच अ माइनर थिंग। आपने मुझे लेक्चर हॉल में ऐसी मामूली बात पर डांटा। आइज़ल की पसमुर्दा बनफशी आंखों ने इसकी सुनहरी ताबानी आंखों में देखकर धीमे बेरौनक लहजे में कहा। ग्लासेस उतारकर उसने डेस्क पर पड़ी बुक पर रखकर सरदार भरकर पेशानी को 2 उंगलियों में सहलाया था। तुम सिर्फ मेरी हो, और इसने तुम्हारे हाथ पर हाथ रखा, जो मेरी बर्दाश्त की इंतहा थी। दीवानावार निगाहों से आइज़ल को देखते उसने अपनी मजबूत हथेली में इसके चेहरे को लेकर बनफशी आंखों में आंखें डालकर सरगोशी की। आइज़ल ने तासुब से इसका हाथ झटका था। इज़ योर लॉ एप्लीकेबल फॉर मी, नॉट फॉर यू? डिड यू आस्क हाउ आई फील व्हेन रुबाब गेट्स योर अटेंशन एंड लुक एट्स यू विद योर एप्रिशिएटिव आइज़? क्या आपका कानून सिर्फ मुझ पर ही लागू होता है, आपके लिए नहीं? क्या आपने पूछा था कि जब रुबाब आपकी तवज्जो हासिल करती है और आपको तारीफ़ी नज़रों से देखती है तो मुझे कैसा लगता है? आइज़ल ने मगमूम निगाहों से उसे देखकर आंखों में ढेरों नाराज़गी लिए कहा। उसने संजीदगी से उसका गुलाबिया चेहरा देखा, जो तैशुअदम के बाद सुर्खी माइल पड़ा था। आंखों का तकरार हुआ था। मैं नहीं जानती क्यों, लेकिन मैं आपके बारे में खुद गर्ज हो रही हूँ। लेकिन आपको परवाह नहीं है मिस्टर प्रोफेसर जावियान हैदर रिजवी। आइज़ल की बात ने उसे साकित छोड़ा था। आर यू स्टार्टिंग टू लव मी? लुक हियर। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करने लगी हो? इधर देखो। जनूनियत से उसके सुर्ख पड़ते चेहरे को दोनों हाथों में लेकर उसकी आंखों से आंखें मिलाकर खुमार से बोझल लहजे में इस्तफसार किया। आइज़ल के दिल ने इसकी दिलगीर भारी आवाज़ पर एक बीट मिस की। इसकी पुरतपिश सांसों के साथ आइज़ल की तेज़ धड़कनों का संगम, सुनहरी आंखों का सहर उसे अपनी तासीर का असीर कर रहा था। Look into my eyes and say, have you started loving me? Do you love me? I want to hear. I have been yearning to hear these words for the last 15 years. Lums, say you love me. मेरी आंखों में देखो और बोलो, क्या तुम मुझसे प्यार करने लगी हो? क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? मैं सुनना चाहता हूँ।
میں پچھلے 15 سالوں سے یہ سب لفظ سننے کے لیے ترس گیا ہوں لمس. کہو تو مجھ سے محبت کرتی ہوں. سرخ پڑتے گالوں کو دونوں ہاتھوں میں تھامے وہ دھیرے لہجے میں گویا ہوا. آئزل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں. لو یو. آئی ڈو. میں کرتی ہوں محبت تم سے. آئزل کے لبوں کی تھر تھراہٹ کو خبط الحواسی سے دیکھتی اس کی تشنا پرسرور نگاہیں اس کے لفظوں کو سننے سے پہلے اس کے لبوں کی حرکت سے ہی ادا ہو سکنے والے الفاظ کا اندازہ کر چکی تھیں. آئزل کے کہے گئے الفاظ بے سکون وجود میں طمانینت سرشاری کی لہریں پیدا کر چکی تھیں. تم نے کیا کہا؟ دوبارہ کہو. دوبارہ کہو. آئزل کے سرخ اناری چہرے کو دیوانگی سے دیکھتے وہ خمار میں ڈوبی سرگوشی اس کے کان میں گھول گیا. آئزل کا چہرہ دہک پڑا تھا. لبوں کو سختی سے بھیج کر اس نے بغاوت پر اترتی دھڑکنوں کو محسوس کیا. پروفیسر زاویان حیدر رضوی، میں آپ سے پیار کرتی ہوں. لمس آئزل رضوی کو آپ سے محبت ہو گئی ہے. اس کی سنہری آنکھوں کی پرخم پلکوں کو محبت سے دیکھ کر آہستگی سے بولی. اس کے ہاتھ کو تھام کر اپنے دل پر رکھتا وہ پرسکون نظروں سے اسے دیکھنے لگا. آئزل نے اس کے 1000ویں حصے پر دھڑکتے دل کی تیز دھڑکنوں کو سمجھا. تمہیں نہیں پتا آج تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے لمس. تمہاری محبت میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے بیبی گرل. اس کی کنپٹی پر لب رکھتے وہ محبت سے بولا. اس کی ہلکی بیئرڈ کی چبھن اور دہکتے لبوں کی شدت آمیز لمس پر وہ آنکھیں میچ گئی تھی. I have had a hard time controlling my emotions. If we were not at the university at that time, you would have been signing with pleasure in my intensity. مجھے اپنی جذبات پر قابو کرنے میں بہت مشکل پیش آ رہی ہے. اگر ہم اس وقت یونیورسٹی میں نہ ہوتے. اپنے دل پر موجود اس کے باریک ہاتھ پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھے وہ پرخمار لہجے میں بولا. آئزل نے سرخ اناری چہرے کے ساتھ اس کے سینے سے ہاتھ ہٹاتے سے خجل نظروں سے دیکھا. اس کی یوں شرمندگی سے ہاتھ کھینچنے پر وہ مبہم سا مسکرائیں. آپ میرے پروفیسر ہیں. آپ کو یہاں پر ایسے الفاظ استعمال کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ آئزل نے خشک لبوں کو تر کرتے سٹ پٹا کر اسے دیکھتے شرمندگی سے کہا تھا. اس کی نظریں بجا کر بڑبڑانے پر وہ محظوظ نظروں سے اسے دیکھ کر مزید اسے چھیڑنے کی غرض سے اس کے روبرو ہوا. آئزل نے لب بھیج کر ایک قدم پیچھے لیا. اگر آپ کو شرم آ رہی ہے تو میں یہ ساری چیزیں آج شام کے لیے محفوظ کر لیتا ہوں. میں آج رات کو اپنے بیڈ روم میں ہر ایک تفصیل بتاؤں گا. کیا یہ ٹھیک ہے؟ اس کے زومعنی آئزل کا دل تیزی سے دھڑکا. دروازہ کھول کر وہ ہوا کی طرح باہر نکل گئی. بی جان، آپ نے پردہ کیوں ہٹایا؟ کھڑکی سے اندر آتی سورج کی بے باک تیز کرنوں نے اس کے خوبصورت چہرے کو نزاکت سے چھوا تھا. بلینکٹ سے ہاتھ نکال کر آنکھوں کے سامنے دیکھ کر اس نے کروٹ بدل کر کشن میں منہ چھپاتے خفگی سے کسمسائی تھی. سورج سر پر آ گیا ہے. اٹھ جاؤ میری بچی. دوسری کھڑکی سے سفید ریشمی پردے ہٹاتی بی جان شفقت سے بولی تھی. سیرت نے بلینکٹ ہٹا کر اٹھتے ہوئے نائٹ اسٹینڈ سے فون اٹھا کر وقت دیکھا تو بی جان اس کے اٹھ جانے پر مسکرائی تھی. کیا آپ نے ناشتہ کیا؟ سیرت نے فون پر اپڈیٹ چیک کرتے محبت سے پوچھا. میں اپنی بچی سے پہلے ناشتہ کیسے کر سکتی ہوں؟ سیرت نے افسردگی سے انہیں دیکھا تھا. جلدی سے بلینکٹ ہٹا کر وہ بیڈ سے اتری تھی. میں ابھی فریش ہو کر آتی ہوں. پھر میری بی جان اور میں ساتھ میں ناشتہ کریں گے. فون کو نائٹ اسٹینڈ پر واپس رکھ کر وہ بی جان کو گلے لگاتے ہوئی دھیمی مسکان کے ساتھ بولی. بی جان نے اس کے بکھرے ریشمی بالوں کو چہرے سے کان کے پیچھے کرتے اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر محبت سے سر ہلایا تھا. بالوں کا رف سا جوڑا بناتے وہ کبرڈ کی جانب بڑھ گئی. بی جان کے باہر جاتی سیرت کا فون بجنا شروع ہوا. کبرڈ سے کپڑے نکالتی سیرت نے پیشانی پر بل ڈال کر کپڑوں کو صوفے پر آرام سے پھیلایا اور نائٹ اسٹینڈ سے اپنا اسمارٹ فون اٹھایا. بولو. کال کنیکٹ کرتے ہوئے وہ سرد لہجے میں بولی. کتنی بد تہذیب ہو سیرت. اپنے شوہر کو کیسے مخاطب کر رہی ہو؟ سنسناہٹ کی ایک تیز لہر نے سیرت کو جھرجھری لینے پر مجبور کر دیا. اس کی بھاری خمار آلود آواز نے سرشاری کی کیفیت طاری کی تھی اس پر. کون شوہر؟ سیرت نے بھویں سکیڑ کر صوفے کے آرام سے کپڑے اٹھاتے ہوئے کہا. اتنی جلدی بھول گئی؟ رننگ مشین سے ہٹ کر اس نے آف وائٹ ٹاول اٹھا کر گھمبیر لہجے میں کہا تھا. کاؤچ پر پڑے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو جاذبیت سے دیکھا تھا اس نے. تم ایک موقع پرست خود غرض شخص ہو. میں یہ نہیں بھولی اور میری طرف سے پاگل اور نفسیاتی ہونے کا خطاب بھی تم رکھ لو. سیرت نے واش روم کا دروازہ کھولتے آنکھیں سکیڑ کر کہا تھا. مشقت کے باعث آلود کسرتی بدن کو ٹاول سے صاف کرتے اس کی بات پر وہ لیپ ٹاپ کی ڈسپلے اسکرین کو بند کرتا مبہم سا مسکرایا. کہاں ہو؟ نچلا لب دبا کر وہ مسکراہٹ ضبط کرتا سنجیدگی سے استفسار کر رہا تھا. تم سے مطلب؟ بالوں کو کھول کر سیرت نے تنک کر کہا تھا. اب کی بار ایک دلفریب متبسم اس کے کٹاؤدار لبوں پر پھیلا.
मैंने कहा था ना इसे ड्रेसेस मत पहना करो। काउच से अपनी वाइट शर्ट उठाते कान में लगाए ईयर प्लग पर उंगली रखकर वो मुतबस्सम लहजे में बोला। सीरत का रंग फक हुआ था। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? तुम देख रहे हो मुझे? नाइट रोब को दुरुस्त करती वो तसबज़ब नज़रों से आसपास देखने लगी। इसका चेहरा सुर्ख भभूका हुआ था। फिक्र मत करो, कैमरा सिर्फ तुम्हारे रूम में, वहाँ पर तुम बिल्कुल सेफ हो चांदनी। मुस्कुराहट जब्त करता वह संजीदगी से बोला था, जबकि इसकी बात ने सीरत के तन बदन में आग लगाई थी। अस्करी, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। सीरत ने मुट्ठी भींचकर दांत पीसे थे। सोफे पर बैठता वो बेसाख्ता इसके पुरुषदयाल लहजे पर मुस्कुराया। आई स्वेयर, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे रूम में कैमरा लगाने की? और कब लगाया तुमने? शर्म नहीं आई तुम्हें, बेशरम शख्स? मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। बीवी से सुबह सुबह अलका बात सुनकर कान से प्लग निकालकर वो मुस्कुराते हुए सर झटक गया। सीरत शोला आंखों से फ़ोन की स्क्रीन को देखकर फंकारी थी। वो कैफेटेरिया में एंटर हुई थी। तेज़ी से धड़कता हुआ दिल अब पुरसकून हुआ था। सुख का सांस लेकर वो हुरम और बुरहान को दाएं जाने मौजूद एक टेबल पर तलाश करने के बाद इनकी जानिब पेशरफ्त कर गई। हुरम ने फिक्रमंदी से इसका हफ्ता हवास चेहरा देखा। बैग को कंधे से हटाकर टेबल पर रखकर चेयर खींचकर वो दोनों को खा जाने वाली नज़रों से देखने के बाद बैठी थी। क्या हुआ ऑफिस में? और तुम हाँफ क्यों रही हो? क्या कहा प्रोफेसर ने? हुर, प्लीज़ अभी कुछ मत पूछो। शुक्र है प्रोफेसर ने तुम्हारा लेटर नहीं देखा। ये लो और उसे एहतियात से छुपा कर रखना। अगर यूनिवर्सिटी में किसी ने भी देख लिया तो मैं हर बार तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊँगी। हुरम अपनी बात ना पूरी होने पर इतना सा मुँह लेकर रह गई थी, मगर आइजल के बैग से निकलते अपने लेटर को इसने अचंभे और मुसर्रत के मिले जुले तासुरात के साथ देखा था। बुरहान ने लेटर लेकर अपनी पैंट की पॉकेट में रखा था। क्या प्रोफेसर ने देख लिया? हुरम ने हैरत से इसके जर्द रंग चेहरे को देखकर इस्तफसार किया। आइजल ने तेरे से सर को जुम्बश देकर जूस का ग्लास लबों से लगाया। हुरम ने बुरहान को देखकर सुख का सांस लिया था। कल जल्दबाजी में बुरहान के लिए लिखा हुआ लेटर उसने टेस्ट पेपर में छुपा दिया था, जो गलती से बाकी टेस्ट पेपर्स के साथ प्रोफेसर जावियान के हाथ लग गया था, जिसे सोचकर वह सुबह से हलकान हो रही थी। अब हल्के दिल के साथ सुख के सांस ले रही थी। तुमने प्रोफेसर की मौजूदगी में यह इनके ऑफिस से कैसे लिया? हुरम के सवाल पर आइजर का चेहरा लटक गया। खसियानी नज़रों से हुरम को देखकर उसने लब भींचे थे। बुरहान इसकी खजालत को महसूस करता था, इसलिए माजरत करके वो दूसरी टेबल पर अपने ग्रुप के पास जा चुका था। हुरम, मैंने इनसे मोहब्बत का इजहार कर दिया और अब मुझे बहुत डर लग रहा है। हुरम के हाथ पर अपना बर्फीदा हाथ रखती वो शर्मिंदगी से धीमे लहजे में अपना राज इसके साथ बांट चुकी थी। हुरम ने हैरत और इस्तजाब से मुंह खोला था। क्या तुमने इनसे इजहार कर दिया? इतना जल्दी क्यों किया? और यूनिवर्सिटी में क्यों किया? तुम कितनी नासब हो। इन चीज़ों का एक ख़ास मौका होता है। तुम तो बिल्कुल निकम्मी हो सारा मूड ख़राब कर दिया पागल कहीं की। हुरम ने इसे तीखी नज़रों से देखने के साथ उसे इसकी गलती बावर करवाई, जिस पर अफसोस से सर हिलाती वह सब अकली पर खुद को कोसती रह गई। तुम्हारे इस लेटर की वजह से किया है। आइजल ने तासुब से सर झटका था। अब क्या करोगी? घर पर न जाने क्या होगा आज। हुरम ने इस्तगायत से शाने उचकाते हुए जूस का घूंट भरकर पूछा। आइजल का हलक खुश्क पड़ा था। दिमाग में झमाका हुआ, दिल की धड़कन अलग तेज़ हुई। मेरी आंखों में देखो और बोलो, क्या तुम्हें मुझसे प्यार करने लगी हो? क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? मैं सुनना चाहता हूँ। मैं पिछले 15 सालों से अल्फाज सुनने को तरस रहा हूँ। लम्स, कहो तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। आइजल का चेहरा सुर्खा नारी हुआ। हुरम ने चंबे से इसकी गुमगु कैफियत देखी। खुद से नजरें बचाकर वो निचला होंठ मुसलसल चबाते हुए जूस के गिलास में तैरते हुए पेपर स्ट्रा को घुमा रही थी। हुर, हाँ। फ़ोन पर टेबल पर रखकर हुरम ने नास्तारे से उसे देखा, जो पुरसोपेश नज़रों से उसे देख रही थी। अजीब कैफियत में मुब्तला वो उंगलियां चटखाते वो अपने ही कहे अल्फाज पर शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। हुरम ने थूक निकलते हुए सर उठाकर उसे देखा था, जो आइजल का स्मार्टफोन ऑफिस में ही भूल गई थी। वापस लेने की घर से कैफेटेरिया में आया था। मैंने ये सब तुम्हारा लेटर उठाने की वजह से बोला। अगर मैं इनको डिस्ट्रैक्ट ना करती तो वो ग्लासेस रखते हुए वो लेटर देख लेते, जो टेस्ट पेपर्स के बिल्कुल फ्रंट पर पड़ा था। और मेरा ऐसा कुछ भी बोलने का इरादा नहीं है। खुदा की कसम, मैं प्रोफेसर से ऐसे लफ्ज़ कहने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मेरी रूह काम जाएगी ऐसी बात करते हुए प्रोफेसर जावियान से। हुरम ने मुतजब नज़रों से इसे देखते आइजल की जानिब देखा, जो उसके चेहरे पर खौफ के लहराते साए देखकर पीछे मुड़ी थी। कुछ देर पहले वाला जो खुशगवार चेहरा वो देखकर आई थी, इस वक्त वो बिल्कुल स्पाट हो चुका था। मिस आइजल, अपनी चीज़ों को संभाल कर रखा करें। संजीदगी से इसके करीब टेबल पर इसका फ़ोन रखने के बाद वो मुतानज़दा निगाहों से उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर कैफेटेरिया से वॉकआउट कर गया। इसकी पसमुर्दा सुनहरी आंखों की एक झलक ने आइजल के दिल को मुट्ठी में जकड़ लिया था। कितना कर्ब छुपाए हुए थी वो आंखें। आइजल, इनके पीछे जाओ वरना इनको कोई गलतफहमी हो जाएगी। हुरम ने इसका हाथ हिलाकर उससे सोचों की भंवर से निकाला।
आयशा ने लब भेज कर इसे यूनिवर्सिटी की फ्रंट विंग की जाने बढ़ते हुए देखा था। तुम्हें नहीं पता आज तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है लम्स। तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है बेबी गर्ल। कुछ देर पहले इसकी दिलफरेब लहजे में की गई सरगोशी आयशा के दिल में पिघले शीशे की मानद काटती और धंसती चली गई। शर्मिंदगी और अफसोस के बाद गला घुट कर रह गया। चलो छोटा पैकेट, पहले मेरी बात सुन लो। मेरे ऑफिस में बिल्कुल भी शरारत नहीं करना, और जब तक मैं फ्री नहीं होती तब तक आप मेरे ऑफिस में बैठे रहेंगी, अंडरस्टैंड? सीरत ने इसकी साइड का गेट दरवाज़ा खोलकर इसका सीट बेल्ट हटाते हुए मुतबस्सम अंदाज में उसे देखकर कहा। सुनहरे बालों वाली छोटी लड़की हेज़ल ग्रीन आंखों में ढेरों मासूमियत समेटे सर हिलाकर इसकी शहादत की उंगली पकड़कर गाड़ी से नीचे उतरी थी। दोनों ऑफिस में दाखिल हुई थीं। इसकी शहादत की उंगली पकड़े बेबी पिंक बारबी फ्रॉक में वो छोटे छोटे कदम उठाते सबको देख रही थी। मामा कब आएंगी? इसने लोगों को अपनी जानिब मुस्कुराते देखकर नाक सुकेड़ कर इस तरफ सार किया था। 1 घंटा हुआ था रोज़ को गए हुए और उसे मामा मामा की रट लग चुकी थी। सीरत ने आंखें सुकेड़ कर उसे देखा था, जिस पर वो होंठों पर दोनों हाथ रखकर मासूमियत से उसे देखने लगी। सीरत बेख्तियार मुस्कुरा दी थी। बरहमी से हदीद रज़ा के ऑफिस से बाहर आती सोनिया ने भवें सुके तनकर इस छोटी सी लड़की को सीरत के साथ मुस्कुराते हुए देखा था। ओह, तो ये ऑफिस अब बच्चों का प्लेग्राउंड बन चुका है, जिसका दिल करता है मुंह उठाकर किसी को भी लेकर आ जाता है। सीरत के लबों से मुस्कुराहट गायब हुई थी। सोनिया सीने पर दोनों हाथ लपेटकर सीरत के सामने आ खड़ी हुई। एरा ने डुबडुबाई नज़रों से सोनिया को देखा था, मगर इसके ओवर मेकअप पर वो हंस पड़ी थी। सोनिया ने तीखी नज़रों से उसे देखा था। सीरत की गुदाज लबों पर भी मुस्कुराहट फिसली थी। एंजल, ये आंटी बहुत आवर हैं, एरा ने सीरत के ओवर कोट को हिलाते हुए काबिल समात आवाज़ में कहकर मुंह पर हाथ रखा था। सोनिया ने छंबे और गुस्से से दांत पर दांत जमाकर उसे देखा था। सीरत ने तासुब से सर झटक कर सोनिया को इस्तेज़ाइया नज़रों से देखा। यहाँ जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं थी। एरा पहले ही इसके ओवर मेकअप पर कमेंट करके इसकी इंसल्ट कर चुकी थी, लिहाजा वो एरा का हाथ थामे अपने ऑफिस की तरफ पेशरफ्त कर गई। आतिशफिशा बनी सोनिया ने मुट्ठी भींचकर एरा को देखा था, जो जाते हुए इसे हंसते हुए घूर रही थी। अस्सलाम वालेकुम। ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर उसने अपने डेस्क से टेक लगाए देखकर सर से लहजे में कहा। गहरी सोच में महव किसी गैर मुरई नुक्ते को देखती भूरी आंखें उठी थीं। ब्लैक स्वेटर के नीचे ब्लैक फ्लोरल स्कर्ट थी। सफ़ेद खूबसूरत पैर बलगंडी और हील्स में जाज़बे नज़र थे। एरा ने छींक कर मासूमियत से नाक पर रुमाल रखा था। फिल ब्लैक 2 पीस सूट में उस हुस्न के काबिल सताइश आकार का जायज़ा लेती सीरत ने सर झटका था। वालेकुम सलाम। सीरत पर से नज़रें हटाकर उसने मुतबस्सम नज़रों से एरा को देखा था, जो इसे देखने पर मुस्कुराई थी। सीरत के इशारे पर एरा शराफत से चेयर पर टांगे लटकाए हुए बैठी थी। वो इज़ दिस फेरी सीरत, ये परी कौन है? हदीद के सवाल करने पर एरा ने मुस्कुराहट कंट्रोल करते सीरत को देखा, जो हदीद के मुखातिब करने पर उसे तीखी नज़रों से देख रही थी, क्योंकि सीरत ने उसे अजनबियों से बात करने से मना किया था, वरना वो अपना तारुफ करवाने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट का शिकार नहीं होती। ये मेरी फ्रेंड की बेटी है और अफसोस के साथ आज पूरा दिन ये यहाँ रहने वाली है मिस्टर अस्करी, अगर आपको कोई एतराज़ हो तो। सीरत ने तीखे लबो लहजे में बात शुरू की थी। मुझे क्या एतराज़ होगा चांदनी? सीरत की बात काटते हुए उसने मोहब्बत भरे लहजे में गोया हुआ। इसकी चांदनी कहने पर सीरत ने लब सुकेड़े थे। सीरत की बात काटते हुए महर आमेज़ लहजे में गोया हुआ। इसके चांदनी कहने पर सीरत ने लब सुकेड़े थे। इसके बदलते तासुरात को महसूस निगाहों से देखते इसके कटावदार लबों पर एक धीमी मुस्कुराहट फैली थी। सीरत, ये तुम्हें चांदनी क्यों बोल रहे हैं? एरा ने भवें उठकाकर इस्तेफामिया निगाहों से दोनों को देखा था। क्योंकि आपकी एंजल बिल्कुल चांद जैसी हैं, ब्यूटीफुल एंड कोल्ड। सीरत का चेहरा सुर्ख पड़ा था। एरा ने झंबे से सीरत को देखा, जबकि सीरत ने हदीद को जहरकुंद नज़रों से देखा, जो इस्तगानियत से उसे ही देख रहा था। सच? एरा ने हैरत से दोनों को देखते हुए तस्दीक चाही। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये लो अपनी गेम खेलो और ख़बरदार जो तुम बाहर आई तो। और मिस्टर अस्करी, बच्ची के सामने कैसी बातें कर रहे हैं आप? एरा को फ़ोन में मसरूफ़ करने के बाद वो इसके रूबरू आकर दांत पीसते बोली थी। एरा को गेम खेलते देखकर वो एक कदम आगे उठाते हुए सीरत को अपने सहर अंग्रेज़ क्लोन की तिलस्मी महक में से बावर करवा दिया। सीरत ने लब भेजकर इसका वजीर चेहरा बेहद बारीकी से देखा। और कितनी पाबंदियाँ आयद करना चाहती हो? एक आईब्रो उठाते हुए वो गरम नखत बेर सांसों की संग गंभीर आवाज़ में इसके ठंडे चेहरे को झुलसाते हुए गोया हुआ। सीरत ने हलक तर किया था। दरवाजे पर नॉक सुनकर सीरत ने 2 कदम पीछे लिए।
सर, बेग लॉग रिफाइनमेंट मीटिंग के लिए अर्श जबारी साहब और शाहनवाज साहब अहम शख्सियात के साथ आपका कॉन्फ्रेंस रूम में इंतज़ार कर रहे हैं। सेक्रेटरी ने अंदर दाखिल होकर धीमे लहजे में कहा था। अर्श का नाम सुनकर सीरत की खंदा पेशानी पर चंद लकीरें खींच गई। एरा, यस मैं इधर ही हूँ। अपने गेम टैब की स्क्रीन पर उंगलियां स्क्रॉल करती एरा ने दोनों हाथों को ताहट के साथ उठाकर इस पर झपटने के साथ कहा। उसे देखकर सीरत मुस्कुराई थी। आयज़ा बेटा, सावियान कहाँ है? सब इस वक्त डाइनिंग हॉल में खाने की मेज़ पर मौजूद थे सिवाय सावियान के। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी वो नहीं आया था, जिसके बाद मेहरुनिसा बेगम ने परेशानी से खामोश बैठी आयज़ा से इस्तफसार किया। अपनी चेयर पर बैठती चाहत ने तस्दीका में इस नज़रों से आयज़ा का पसमुर्दा चेहरा देखा जो इनके दरमियान होने वाली लड़ाई की गवाही दे रहा था। अम्मी वो मुझे ड्रॉप करके ऑफिस चले गए थे। उंगलियों को चटखाने के साथ उसने तज़ब्ज़ब नज़रों से मेहरुनिसा बेगम को देखकर जवाब दिया। चाहत ने मुस्कुराकर खाना शुरू किया। तो बेटा फ़ोन कर लो उसे। मेहरुनिसा बेगम की बात पर लब भेंचकर उसने फ़ोन उठाया था। पिछले 4 घंटों से वो मुसलसल उसे कॉल कर रही थी मगर वो पिक नहीं कर रहा था। अब मेहरुनिसा बेगम के सवालों ने आयज़ल की परेशानी में मज़ीद इजाफा किया। कॉल पिक ना होने पर इसकी बनफशी आंखों में नमी उभरी थी। हलक तर करने के साथ उसने हलक में फंसते आंसुओं के ज़ख़ीरे को धकेला था। मसरूफ़ होगा बेटा, खाना शुरू करो, ठंडा हो रहा है। मेहरुनिसा बेगम ने इसके इज़्तिराब और अफसरदगी के आसार समेटते चेहरे को देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा। आयज़ल चेयर धीरे से पीछे धकेल कर उठी थी। चाहत ने तंज़िया नज़रों से उसे देखा। मुझे भूख नहीं है अम्मी। ज़बरदस्ती की मुस्कान मुख्तसर इनकार के हमरा मेहरुनिसा बेगम के हवाले करके वह फ़ोन उठाकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। मेहरुनिसा बेगम ने मुतफक्किर नज़रों से उसे देखा था। आई वॉन्ट यू टू नीड मी लाइक द एयर यू ब्रीथ। आई वॉन्ट यू to hold me in your loving arms. I want you to need me. I need you. ठंडी सर्द रात में वो सुनसान सड़क पर तेज़ रफ्तारी से ड्राइविंग कर रहा था। रोड की तेज़ लाइट्स में सुनहरी दरख्श आंखों में चमकती नमी और पुरखम पलकों पर चमकते मोती इन खूबसूरत आंखों की खूबसूरती में हद दर्जा इजाफे का सबब बने हुए थे। मोहब्बत दुनिया में सबसे बेख्तियार जज्बा है और यही उसकी सबसे बड़ी ख़राबी है। इंसान छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाता है और छोटी छोटी बातें उसे तोड़ देती हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था लम्स। स्टीयरिंग व्हील पर गिरफ्त बढ़ाकर उसने कर्बनाक लहजे में कहा। जज्बाती से होती बेहद भारी इसकी अपनी आवाज़ इसके लिए तकलीफ़ थी। फ़ोन मुसलसल वाइब्रेट हो रहा था मगर वो फ़ोन उठाने से गुरेज़ा था। आयज़ल ने फ़ोन कान से हटाया था। दरवाज़ा के खुलने पर उसके घर लौट आने की उम्मीद के साथ इसका दिल तेज़ी से धड़का मगर अंदर आने वाली चाहत थी। आयज़ल ने इसे मुतज़ब्ज़ब नज़रों से देखा था। क्या हुआ, अभी नहीं आया हसी? सीने पर बाजू फोल्ड करते हुए तस्हीका में इस लहजे में बोली। आयज़ल ने फ़ोन नाइट स्टैंड पर रख दिया। उसे नज़रअंदाज करना चाहा मगर वो उसकी मज़ीद पेशरफ्त कर गई। आयज़ल ने नज़रें उठाकर उसकी तमस्खुर उड़ाती आंखों को देखा था। बहुत समझदार होकर भी तो समझदार नहीं हो लम्स। सर को धीरे से तंज के साथ खम देकर वो इसके गिर्द टहलते हुए बोली। आयज़ल ने तेज़ नज़रों से उसे अपने पीछे टहलते हुए देखा था। पता है मोहब्बत का रिश्ता कितना नाजुक होता है। तुमने फिर से कोई बेवकूफ़ी की होगी और ज़ाविया नाराज़ हो गया। अफसोस, वो तुमसे इतनी मोहब्बत करते हैं मगर तुम क्यों कर रही हो ऐसा? आयज़ल का चेहरा थोड़ी से ऊपर उठाकर चाहत ने इस्तेज़ा किया। क्या मतलब है तुम्हारा? आयज़ल ने इसका हाथ हटाकर झटकते हुए कहा। चाहत ने मुस्कुराते हुए इसे देखा। मेरा मकसद तुम्हें यह बताना था कि मैं जानती हूँ तुम सावियान को इसके हकूक़ से महरूम रख रही हो और वो भी मोहब्बत के नाम पर तुम्हें वक्त पर वक्त दे रहा है। लेकिन सोचो, अगर यही बात मैं अम्मी को बता दूँ तो क्या तुम इनसे नज़रें मिला पाओगी? आयज़ल ने बेतासर नज़रों से चाहत को देखा मगर दरवाजे पर हाथ रखे खड़ी मेहरुनिसा बेगम को देखकर आयज़ल साकित हुई थी। आयज़ल के जर्द रंग पड़ते चेहरे को देखकर चाहत दरवाजे की जानिब पलटी। मेहरुनिसा बेगम से बरहमी से देख रही थी। मामा, अपने कमरे में जाओ। मेहरुनिसा बेगम ने चाहत को देखकर खशमज़दा लहजे में कहा। चाहत ने बेसाख्ता मुट्ठी भींची थी। तेज़ कदमों के साथ वो अपने कमरे की तरफ बढ़ी थी। जाते हुए आयज़ल को पलटकर खून नख़वत भरी नज़रों से देखना नहीं भूली थी। मेहरुनिसा बेगम को देखकर उंगलियां चटखाते आयज़ल शर्मिंदगी से नज़रें झुका गई। सीरत के ऑफिस के सामने से गुजरती सोनिया एरा को दरवाजे के करीब टेक लगाकर देखकर रुकी थी। अपने टैबलेट से खेलती एरा ने उसे तीखी नज़रों से देखकर दोबारा गेम खेलना शुरू किया। सोनिया ने मुट्ठी भींची थी। इडियट, एक तो तुम जिसके साथ आई हो वो मुझे जहर लगती है, ऊपर से तुम। सोनिया हंसते से इस छोटी सी लड़की को देखकर धीमे लहजे में बड़बड़ाई जो सीरत के साथ यहाँ आने के बाद शुरू से ही इसे बुरी लग रही थी। उसके बाद उसने नादानी में जो कहा उसके बाद सोनिया का दिल जलकर रह गया था। आंटी, आप मुझसे नाराज़ हो क्या?
उसे खुद को घूरते देखकर एरा ने धीमे लहजे में पूछा। सोनिया ने भवेश सुकेड़ी थी, मगर एरा ने मासूमियत से उसे देखते इस्तफसार किया। मैं तुम्हारी आंटी नहीं हूँ, जस्ट शट अप। उसे इल्तहाबी निगाहों से देखकर सोनिया ने उंगली उठाकर उस घूरते हुए वार्न किया। एरा के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट इसकी तीखी नज़रों से नजरें मिलते ही गायब होगी। तुम बहुत बुरी हो, पैर पटक कर कहती एरा ने नाक चढ़ाया था। सोनिया ने लंबा सांस हवा के स्पुर्द करते हुए बदन में उठते इश्तिहार को थमने की राह दिखाई, मगर गुस्सा किसी सूरत कम ना हुआ। एरा चलते हुए कॉन्फ्रेंस रूम की जानिब बढ़ रही थी। सोनिया ने किन्नत नज़रों से उसे देखकर धीमे कदमों के साथ इसके पीछे चलना शुरू किया। चलते हुए फ्रॉक के रिबन एरा के पैर के नीचे आई थी। एरा ने दरवाजे पर हाथ रखकर नीचे झुकी थी। सोनिया बदख्वाह मुस्कुराहट के साथ गुजरते ऑफिस का दरवाज़ा बंद कर गई। मम्मा, ये एरा की चीख थी जो सबने सुनी थी। ब्रीफिंग सुनते हदीद और सीरत ने बेक वक्त एक दूसरे को देखा। चेयर पीछे धकेल कर सीरत सबक कदमों के साथ कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर भागी थी। सबने मुतफक्किर नज़रों से उसे अपनी चेयर से उठकर सीरत के पीछे भागते हुए देखा था। एरा, सीरत का चेहरा लट्ठे की मानंद सफ़ेद पड़ा। अपने छोटे से हाथ को दरवाजे पर रखे वो भारी दरवाजे को धकेलने की कोशिश करते हुए रो रही थी। इसके हाथ से बहते हल्के सुर्ख स्याल के कतरे मार्बल वाइट फर्श पर देखकर सीरत का दिल धड़कना बंद हो गया। बगैर 1 मिनट की देर लगाए वो दौड़ती हुई इसके पास आई। दरवाजे को खोलकर उसने रोते हुए एरा का हाथ थामा था। खून मुसलसल बह रहा था। ऑफिस के एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स सब पशेमान नज़रों से उन्हें देख रहे थे। खून, खून। दरवाजे से आज़ादी मिलने के बाद एरा की सांसें बहाल हुई थी, मगर अपने हाथ से बहते खून को देखकर इसका सुर्खी मैल चेहरा जर्द पड़ गया था। इसके हाथ पर अपना रुमाल रखकर खून का अखराज रोकती सीरत के हाथ कांपे थे, मगर एरा ने चीखते हुए अपना हाथ उसके हाथ से खींचा था। सीरत ने इसका हाथ दोबारा पकड़ना चाहा, मगर वो खून देखकर इस कदर खौफजदा हो चुकी थी कि वो सीरत को भी अपने हाथ को नहीं देखने दे रही थी और मुसलसल रोते अपनी माँ को पुकार रही थी। सोनिया ने तासुब से इसकी गैर होती हालत देखी। दिल में पछतावा होना शुरू हुआ था। मुझे अपना हाथ दो परी। एरा ने नम आँखों से सकते हुए अपने पास घुटना टिकाकर बैठते हुए देखा। टेंशन और खफ्तुल हवासी की सीरत से ज़बरदस्ती इसका हाथ पकड़ती सीरत ने लब भींचकर उसे अपना हाथ वापस दिया था। एरा ने डरते हुए इसके मजबूत हाथ पर अपना हाथ रखा था। सेक्रेटरी को फर्स्ट एड का लाने का वो पहले ही कह चुका था, लिहाजा वो फर्स्ट एड किट उठाए उसके इशारे का इंतज़ार कर रही थी। उसके हाथ में फर्स्ट एड किट थमाकर पीछे हटी थी। इट हर्ट्स, ये दर्द कर रहा है। चश्मे दर्द से इसका स्पाट चेहरा देखकर एरा ने उसे अपने जख्म का मुआयना करते देखकर सिसकी ली। सीरत की आंखों में नमी थी। फर्श पर फैलते इसके सुर्ख स्याह को देखकर सीरत का ना सिर्फ दिल बंद हुआ था, बल्कि इसके हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। फर्स्ट एड किट खोलते हदीद ने एरा को हमदर्दी से देखा था। जस्ट अ लिटिल व्हाइल, ऑल द पेन विल बी गॉन फेरी। बस थोड़ी सी देर में सारा दर्द खत्म हो जाएगा परी। इसके नरम रू परवर लहजे ने सीरत के दिल को तमानियत बख्शी थी। एरा ने लब भींचकर उसे देखा। अपना ऑफ वाइट रुमाल निकालकर इसकी हथेली पर अपने मजबूत हाथ से बराह रास्त दबाव डाले वो एरा के तसबज़ब नज़रों से देखने पर मुबहिम सा मुस्कुरा। एरा नम आँखों से मुस्कुराई थी। सीरत ने लंबा सांस हवा के स्पुर्द किया। सीरत ने मुतफक्किर नज़रों से डॉक्टर को गार्ड के हमरा बाहर जाते देखा था। ऑफिस से आती एरा की खिलखिलाहट पर उसे दिली सुकून मिला था। गहरा सांस लेकर खुद को कंपोज होने के साथ वो धीमे कदमों के साथ ऑफिस में दाखिल हुई थी। एरा को रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे आइसक्रीम खाते देखकर वो एक पल को साकित हुई थी। सीरत, एरा ने मुस्कुराते हुए इसे अपने पास बुलाया था। सीरत की पशेमान निगाहों ने इसके छोटे से हाथ पर बंधी सफ़ेद बैंडेज देखी थी। लब भींचकर वो इसके पास आई थी। एरा ने अचंभे से उसे देखा था। इसके गोल्डन बिखले बालों को सहलाती सीरत की आंखों से आंसू टूटकर इसके गुलाबी रुखसार पर फिसले। आई एम सॉरी, मैं बहुत बुरी हूँ ना। मुझे आपको ऐसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। आपकी मामा ने आपकी जिम्मेदारी मुझे दी थी और मैं इतनी लापरवाह हूँ। अपनी एंजल को माफ़ कर दो एरा। सीरत ने इसके बालों पर लब रखते हुए धीमे लहजे में कहा। एरा ने उदासी से सीरत को देखा था, जो इन सब की जिम्मेदार खुद को ठहरा रही थी। इसके हाथ से टपकती खून की वो सुर्ख बूंदें जो कतरा कतरा फर्श पर गिर रही थी। सीरत का दिल जकड़ चुकी थी। एरा को सुकून का इंजेक्शन दिया गया था। आंखें झपकते हुए वो सीरत को देख रही थी। इसमें तुम्हारी गलती नहीं। वॉशरूम का डोर स्लाइड हुआ था। वाइट टावल से हाथ साफ करते वो बाहर आया था। सीरत ने इसकी जानिब देखा। वाइट शर्ट के कफलिंग्स खुले हुए थे, जिन्हें कोहनियों तक फोल्ड किया गया था। सफ़ेद मजबूती कलाई नीली नसों के साथ आराम पर एक दूसरे को काटते 2 तीरों के टैटू ने सीरत की नज़रों को जज्ब किया। चेयर से कोट उठाते उसने दर्जीदा नज़रों से सीरत को देखा, जो इसकी नज़रें मिलने पर लब भींचकर एरा की जानिब मुतवज्जो हो चुकी थी। मुबहिम तबस्सुम को मज़ीद बिखरने से रोककर
उसने लब का किनारा दबाकर मुस्कुराहट भांप ली थी। चेयर पर सोई एरा को पुरसकून नज़रों से देखकर वो इसकी जानिब पलट गई। थैंक्स अ लॉट मिस्टर अस्करी। सीरत ने इसकी भूरी आंखों को एक पल सराहा, फिर कदरे संजीदा प्रोफेशनल अंदाज में बोली। रिस्ट पर वॉच पहनते हुए उसने संजीदगी से सीरत की जानिब देखा। किस लिए? उसने मतानत से उसके बुझे चेहरे को देखा। यकीनन जो कुछ हुआ तो उसने सीरत के दिल पर गहरा असर छोड़ा था, जिसके आसार अब तक इसके चेहरे पर थे। एरा को हैंडल करने के लिए वो डरी हुई थी और आपने उसे तहम्मुल से हैंडल किया। सीरत ने सीने पर हाथ बांधकर उसे अपने रूबरू ठहरते देखकर अब की बार लहजा कंपोज किया था। उसके लहजे में अचानक आते बदलाव पर वो मुबहम सा मुस्कुराया। क्या खुदगर्ज शख्स को शुक्रिया कहना तुम्हारी शान के खिलाफ नहीं? सुबह के किए गए तंज को इसने बड़ी महारत से वापस इसकी जानिब उछाला था। सीरत जो तहजीब से पेश आने का अज़म कर चुकी थी, इसकी जानिब से लफ्ज़ों की तेज़ी पर सुलग पड़ी। क्या तुम खुद को मौका परस्त और खुदगर्ज नहीं समझते? पेशानी पर बल डाले वो काटदार लहजे में बोली। पैंट की पॉकेट में से हाथ निकालकर वो इसके करीब डेस्क पर दाएं बाएं बाजू की जंजीर बनाकर इसके तीखे नकूश चेहरे पर झुका। सीरत ने ग़ज़बनाक नज़रों से उसे देखा। यहाँ सब खुदगर्ज हैं चांदनी, मैं भी, तुम भी। और रही बात मौका परस्ती की, तो जिस तरह मैंने तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर तुमसे निकाह किया है, इसी तरह तुम भी मेरा फ़ायदा उठा रही हो। लिहाजा ये म्यूचुअल भी नहीं, फेशियल रिलेशनशिप हुआ, ना कि मेरी खुदगर्जी। सीरत ने इसके लफ्ज़ों की पुख्तगी पर लब काटते भूरी ताबनाक आंखों ने उसके गुलाबी लबों को फरिफ्तगी से देखा। आज क्या है सीरत? आज आपका बर्थडे है मिस्टर अस्करी। सीरत ने रवादारी की नज़र से उसके बेहद करीब चेहरे का जायज़ा लेकर खुश्क लहजे में कहा। इसके लबो लहजा मुस्कुराहट में ढलते चले गए। और मेरी बीवी ने मुझे विश नहीं किया। उसकी सी आंखों में झांककर वो शिकवा में इस लहजे में बोला। सीरत ने तंजिया नज़रों से उसे देखकर अपना फ़ोन उठाया। इसका ऑफिशियल अकाउंट निकालकर स्क्रीन का रुख इसकी जानिब किया। जहाँ आपको 2 करोड़ लोगों ने इतनी मोहब्बत से विश किया हो, जिनमें तादाद कसीर लड़कियों की है, तो वहाँ मेरी बेस्ट विशेज़ की आपको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए मिस्टर अस्करी। सीरत ने आंखें सुकेड़ी। इसका लहजा साफ बरहमी का इजहार कर रहा था। इसके तवाना बाजुओं ने घेरा तंग किया। सीरत ड्रेसिंग डेस्क से लगती साकत हुई। आज रात तैयार रहना, एक ग्रैंड इवेंट है जिसमें मेरे बिजनेस कॉलीग्स और करीबी रिलेटिव्स शिरकत करेंगे। अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाना सीरत, वरना घर से उठा कर ले जाऊँगा। सीरत ने तुनक कर उसे देखा। उसकी बेबाक नज़रें सीरत के चेहरे का बारीक बीनी से जायज़ा लेने के बाद हट चुकी थी। लो छोड़ो ये सब। रहीम ने हैरत से